very big hello to all the NEET aspirants. We are back here with the most awaited test series of the Northeast. I'm sure that this is going to help you to get a seat in a good medical college. So best of luck, go ace it. Now let's start with the botany solutions of the PT1. The very first question out here is Systema Nature is. I hope आपको पता है what is Systema Nature. Systema Nature is a book. Who wrote that? Father of taxonomy. Who is father of taxonomy? Linnaeus. So the answer for that is what? Publication of Linnaeus. And where he had classified, named the living organisms. ठीक है? Therefore the answer for the question number 91 happens to be A option. The next 92. Kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Obviously ये सब क्या है? These are the categories. Categories. अब यहाँ ने थोड़ा सा क्या करा दिया, घुमा दिया यहाँ पर. किस चीज़ का categories? Is this for the plants or the animals? तो कैसे पहचानना आपने? यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? Phylum. जहाँ पर phylum आ गया, that happens to be the animals. Therefore the answer for the question happens to be the B option. But अगर मेरे को A option answer देना होता तो मैं क्या change करती? I could have written what? Division out here. ठीक है? The answer is that. C, both A and B. I hope आपने ये गलती नहीं करी है यहाँ पर. चलिए. Question number 93. As we go lower from kingdom to the species, सबसे पहले देखो क्या क्या आ रहा है? Kingdom, division, class, order, family, genus, species. आ गया ये सब कुछ. ऊपर से मैं गई, kingdom से नीचे गई, तो क्या हो रहा है? The number of common characters. क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे जाने में number of common characters goes on increasing. क्योंकि हमको मालूम है species में ज़्यादा similarities होती है, kingdom में कम similarities होती है. Therefore the answer for the question happens to be the B option. अगर मुझको करना था A ऑप्शन आंसर देना था तो क्या करती? क्यों डिक्रीजिंग? क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अगर ऑर्गेनिजम्स दिया होता क्वेश्चन में तो क्या होता? डिक्रीज. पर अभी हमने क्या दिया? नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज. तो आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन. 94. Diversity, biodiversity. Bio means living organism. Diversity means differences. किस में differences? Number of organisms, the type of organisms. उस सब का differences को बोलते हैं biodiversity. Number of organisms known, correct है. Biodiversity है यहाँ पर. Types of organisms known, correct है यहाँ पर. Number of species known. अगर आपने confusion किया है, species and organism is the same thing. तो answer for that happens to be तीनों करेक्ट है. therefore the answer happens to be the D option. हमारे पास कितना लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ है जो आइडेंटिफाइड है? 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स. तो वो हमारी क्या है? बायोडाइवर्सिटी. ओके, चलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. एस्टेब्लिश प्रोसीजर्स टू असाइन अ साइंटिफिक नेम आर. क्यों हमने साइंटिफिक नेम दे दिया? अच्छा था ना हमारे पास लोकल नेम्स थे. क्यों दे दिया? सो दैट पूरा दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में एवरी ऑर्गेनिजम्स आउट हियर इज बीन नेम्ड बाय द सेम नेम. हम सब उसको सेम नेम से पुकारे वहां पर. सो व्हाट इज दैट? दैट इज द बेसिक नीड फॉर इट. तो क्या दिया है? एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट, करेक्ट है. ऑफ यूएसए, क्या करना हमने यूएसए से? टू इंडिया, क्या करना हमने सिर्फ इंडिया से? अगर मैं फॉरेन जा रही तो उनको मालूम नहीं पड़ेगा तो क्या फायदा? टू या ऑफ जर्मनी नहीं, तो किसके लिए? ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड. सब दुनिया में जितने लोग हैं सबके सब सेम नेम से एक ऑर्गेनिज्म को पहचाने, वहां पर नेम दे दे वहां पर. सो दैट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन. ठीक है, चलिए. Next question out here. We are having a match the following out here. Let's go for it. List 1, list 2. Cell wall with silica. हमको पता है यहाँ पे सिलिका का सेल वॉल किसके पास है? क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स में कौन है हमारे पास? क्राइसोफाइट्स में एटम्स आता है. तो that is matched with the that is matched with what? The C option out here. C यहाँ पर. ठीक है. Next. Holozoic nutrition and definite growth of pattern. Holozoic मतलब engulf करना, अंदर ले लेना. क्या है? यहाँ पर हमने इंजेक्शन किया, डाइजेशन क्या, इजेशन क्या. होलोजोइक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न कौन दिखाते? एनिमल्स आउट हियर. दैट इज ए.
एक्सोजिनस सेक्सुअल स्पोर्स, एक्सोजिनस मींस बाहर में प्रेजेंट है, कौन? सेक्सुअल स्पोर्स। किसमें? हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सेक्सुअल स्पोर्स है इसके पास? दैट इज नोन एज व्हाट? बेसिडियोस्पोर्स। हेट्रोसिस्ट, कौन क्या करता है? हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, किसके पास में? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आंसर फॉर दैट इज डी ऑप्शन। अब देखो किससे मैच करना है, सी, A, B, D. The answer for that option happens to be 96 happens to be the C option. देख लीजिए, बाकी को करेक्ट करिए कहीं पर। सबसे अच्छा है कि C के साथ मेरे पास एक ही है, बाकी तो है ही नहीं वन वाला। Therefore the answer is easy for you to identify answer number or answer is what? C option. Next, a virus differs from bacteria. Of course, a virus differs from bacteria. पर आपने पहले क्या देना है? वायरस के बारे देखना है। क्या एक वायरस के पास सेल वॉल होती है? नो। क्या एक वायरस के पास साइटोप्लाज्म होता है? नो। डज अ वायरस हैव DNA? यस, होता है, पर वो तो बैक्टीरिया के पास भी है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। इट इज हैविंग DNA और RNA विद नो राइबोसोम्स। बैक्टीरिया के पास क्या है? DNA है एंड विद द राइबोसोम, सो दैट मेक्स अ वायरस डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द बैक्टीरिया आउट हियर। देयरफॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन। Question number 98. Cats come under Felis. Now what does the Felis word mean? Felis is the genus for the cats. Therefore the answer for that happens to be the C option. But let's talk about the other things. मुझे बताओ, अगर मैं cat की family बोलती तो क्या होता है? Felidae. अगर मैं उसका ऑर्डर बोलती तो क्या होता? कार्निवोरा। अगर मैं उसकी क्लास बोलती तो क्या होता? मेमेलिया। एंड स्पीशीज तो दैट वेरीज, डोमेस्टिका भी एक स्पीशीज है। तो आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन। चले 99, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। फेलिस इज कैनेडी। देखो कैनेडी क्या था यहाँ पे? फेलिडी। तो दिस इज अ रॉन्ग आंसर। धतूरा क्या है? सोलानेसी, विच इज द करेक्ट आंसर। पिटूनिया, पिटूनिया ऑल्सो हैपेंस टू बी सोलानेसी, तो यहाँ पे मेरे पास सोलानेसी आना चाहिए था, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। डॉग्स इज फेलिडी, ये इसका आना चाहिए था कैनेडी, वो उसका फेलिडी आना चाहिए था, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देयरफॉर द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन। ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड। 100 polymoniales. When I have the word ales, the suffix ales out here, what does it mean? Order. इसके अंदर फैमिलीज होनी पड़ेगी, ऑब्वियसली क्या है? सोलानेसी एंड कॉन्वोल्वुलेसी, द टू फैमिलीज आउट हियर। एक ऑर्डर में फैमिलीज किस बेसिस पे होती है यहाँ पर? व्हेन दे आर सिमिलर टू ईच अदर, बट मेनली किसके ऊपर में? रिप्रोडक्टिव फीचर्स। अगर रिप्रोडक्टिव वर्ड नहीं है तो किसका? फ्लावर का फीचर। अगर नहीं है तो फ्लोरल फीचर्स। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इटसेल्फ इज व्हाट? फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक। दैट हैपेंस टू बी द आंसर फॉर इट। जहाँ पे मेरे पास वेजिटेटिव पोर्शन है वो हमारे फैमिलीज तक हम क्या जाते हैं? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव, बोथ ऑफ इट। बट ऑर्डर में हम किस पे जाते हैं? ओनली द फ्लोरल और द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। देयरफॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन। 101. Which of following statements about the classification is not true? पहले देखना है यहाँ पे not true। समझ में आया? Members of a family are less similar than the members included in a genus. Yes, हमने बोला था species से मैं genus में जाती हूँ तो similarities कम होते हैं, तो genus से जब मैं family में जाती हूँ तो कम होते हैं। तो family और species के बारे में बोला है, family में less similarities है, which is a very correct option out here. An order has more members than the number of members in a genus. Obviously क्या बताया था? नीचे से जब मैं ऊपर जाती हूँ हमारे पास number of organism increase करते हैं, so that is also correct out here. Families have more members than the phyla. Phyla कहाँ पे? ऊपर जा रहा है, मतलब division का है, तो family नीचे है, तो family के पास कम members होना पड़ेगा, यहाँ पे more नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए? Less members. So this statement is wrong out here. The number of species in a taxon depends upon the relative degree of similarities. Obviously, species में हमारे पास क्या होता है? Similarities. जितना similar है वो सब एक species में place होता है। तो what is the answer for that? पूछा है not true. कौन सा वाला is not true? That is option number 3rd out here. The answer for this question happens to be the A option. Only 3 is not true out here. ठीक है? 102. Incorrect. फिर से आपने देखना है incorrect for the taxonomic hierarchy. There are 7 obligate, obviously कितना categories है? 7 obligate categories है, जो अभी हमने 7 नाम बोले
and more intermediate categories. Yes, more intermediate categories है. कैसा categories? Subspecies, subfamily, superfamily, suborder, superorder. ये सब क्यों चाहिए? To have a better classification. So this is a very correct statement out here. Higher the category, fewer are the members, are the number of organisms. Higher the category, more are the number of organisms. ठीक है ना? ये मेरे पास wrong statement हो गया. Lower the category, more are the number of common features. अभी बताया the more are the number of common features, which is correct. Greatest similarity in structure is seen in between the members of the species. Obviously एक species है जहाँ पे वहाँ पे organisms है, more similarity होना पड़ेगा. That is also very correct question out here या statement out here. Therefore the answer for the incorrect portion out here happens to be what? The B option. ठीक है? चलिए. 103. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे पूछा है करेक्ट. यू आर सपोज टू फोकस ऑन द वर्ड करेक्ट है, इनकरेक्ट है, प्लीज फोकस ऑन दोस वर्ड्स. मैंजीफेरा इज द नेम ऑफ अ स्पीशीज. मैंजीफेरा किसका नाम है? इट इज फॉर द मैंगो, बट व्हाट इज दैट? इट्स अ जीनस आउट हियर. तो यहाँ पे मेरे पास क्या आना चाहिए था? जीनस. पॉलीमोनियल्स अभी सिखाया है. एल्स व्हाट इज दैट? एन ऑर्डर. यहाँ पे लिख दिया फैमिली. यहाँ पे क्या आना चाहिए था? ऑर्डर. नेक्स्ट, Dicotyledone is the name of the division. ये किसका नाम है? Is this a division out here? No, division यहाँ पे क्या होता है मेरे पास? एंजियोस्पर्मी. तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था मेरे को? एंजियोस्पर्मी. और यहाँ पे अगर चेंज करती हूँ तो क्या लिखना है? यहाँ पे मेरे को क्लास लिखना है. डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स हैपेंस टू बी द क्लासेस आउट हियर. द डिवीजन इज एंजियोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी, ये सब लोग हैं. तो ये भी मेरे पास रॉन्ग हो गया यहाँ पर. ट्रिटिकम इज द नेम ऑफ अ जीनस. वेरी करेक्ट. ट्रिटिकम एस्टिवम आपको पता है किसका नाम है? फॉर द व्हीट. द आंसर फॉर 103 हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन. लेट्स गो फॉर 104. Antibiotics. Antibiotics. What do you mean by the word antibiotics? Anti means against, bio means life. The chemicals obtained from one organism to suppress the activity of what? Other organisms. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Antibiotics out here. Is produced by only bacteria. Bacteria produce कर रहा right है, but only word wrong है. ओनली फंजाई. फंजाई कर रहा है. सबसे पहला पेनिसिलियम से पेनिसिलिन मिला, तो ये भी मेरे पास में क्या है? ये ओनली इज रॉन्ग. ओनली वायरस. नो, वायरस से हमारे को कुछ लेना देना नहीं है. किससे? बोथ ए एंड बी. यस, एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियाज एंड द फंजाई. देयरफॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन. 105. Which pair of diseases, disease is viral? That means viral origin का है. Virus are responsible for causing it. अब स्टूडेंट्स को क्या होता है? वायरस का डिजीज भूल जाता है. तो बैक्टीरियल डिजीज को देख लेते एक बार. हमने क्या पढ़ा था? TC. टी से क्या? टाइफाइड. सी से क्या? कॉलेरा. टी से क्या? टेटनस एंड साइट्रस कैंकर. ये चारों बैक्टीरियल डिजीज हैं. अगर आप इसको एलिमिनेट करते हैं, देखो कॉलेरा कौन कर रहा है? बैक्टीरिया. ये मेरे पास वायरस करेक्ट है. तो टेटनस कौन कर रहा है? बैक्टीरिया. ये मेरे पास करेक्ट है. टाइफाइड कौन कर रहा है? बैक्टीरिया. तो दैट मीन्स ये तीनों तो एलिमिनेट कर लिया मैंने. तो क्या बचा? मम्स एंड इन्फ्लुएंजा. हमारी बुक में लिखा ही है दीज आर कॉज्ड बाय व्हाट? द वायरस. देयरफॉर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. इसी को अगर मैं उल्टा कर देती कौन सा बैक्टीरियल है, तो आपको ये सारे बैक्टीरियल डिजीज भी पता लग रहे हैं. ओके, चलिए 106. आप देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफर साइड पे है. बैक्टीरिया विल लैक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. हमको पता है प्लांट्स डू हैव ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बट बैक्टीरिया इज अ मोनेरा. इट डज नॉट हैव ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. कौन सा दो जनरेशन? गेमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक. बिटवीन द डिप्लॉयड हैप्लॉयड फेजेस. ऑब्वियसली डिप्लॉयड हैप्लॉयड फेजेस है. डिप्लॉयड फेज का नाम क्या है? स्पोरोफाइटिक. हैप्लॉयड फेज का क्या नाम है? गेमेटोफाइटिक. व्हाई डू दे लैक दैट? क्यों इसमें ये एब्सेंट है? अब देखते हैं क्यों. एब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल. नो, बैक्टीरिया के पास जेनेटिक मटेरियल तो होता है. क्या है? डीएनए है. तो दिस आंसर ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस. हमने पढ़ा था जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गैमेट्स बनता है, गैमेट में फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, मियोसिस होता है. ये चार चीज होना पड़ेगा. बट यहाँ पे लिखा है फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है. करेक्ट है. यहाँ पे मियोसिस हो रहा है? नहीं हो रहा है. अगर ये दोनों कर देता तो क्या करता? यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाता? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता.
बट क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं? तो क्या करें? ओनली द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल। तो दिस इज अ वेरी करेक्ट ऑप्शन आउट हियर। फिर देख लीजिए आगे, एब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटीरियल एक्सचेंज, वो तो जेनेटिक मटीरियल को एक्सचेंज तो करता ही है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड आगे लिखा ऑल ऑफ द अबव, विच इज नॉट द करेक्ट आंसर। देयरफॉर द आंसर फॉर 106 हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 107, पैंथेरा लियो, किसके बारे में बात कर रहे हैं? लियो द लायन आउट हियर। लियो इज द जेनरिक नेम। नो, व्हाट इज लियो? इट्स अ स्पेसिफिक नेम। पैंथेरा इज अ स्पेसिफिक नेम, उल्टा कर दिया, पैंथेरा इज अ जेनरिक नेम, तो ये भी रॉन्ग है। बोथ वर्ड शुड बी अंडरलाइंड। ऑब्वियसली जब ये लिखते हैं, जब मैं खुद लिख रही हूं तो मैं नॉर्मल फॉर्म में लिखूंगी, हैंड रिटन में लिखूंगी और उसको अंडरलाइन करूंगी सेपरेटली। Underline separately if these are handwritten, which is very correct out here. आगे, Leo starts with a small letter. Yes, Leo starts with a small letter to show the Latin origin. नहीं, Latin origin के इसको लाइन को करेक्ट करना तो क्या करूंगी? Both words should be underlined separately if they are handwritten to show the Latin origin. ये इसकी लाइन है, यहाँ तक ये ठीक था, यहाँ तक है, but not to show the Latin origin. Latin origin क्या करना हमने? ये लाइन अगर लिखा है या इटैलिक्स लिखा है तब वो बता रहा है क्या? लैटिन ऑरिजिन। देयरफॉर द आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन। ओके, अब स्टूडेंट सोचेंगे ये ठीक लिखा है, लियो स्टार्ट्स विद व्हाट? स्मॉल लेटर टू शो लैटिन ऑरिजिन। नहीं, ये आधा पोर्शन राइट है, ये आंसर वहां पे जाएगा। देयरफॉर द आंसर इज द सी ऑप्शन। चलिए 108, consider the two statements. Taxa can indicate categories at very different levels. सारे डिफरेंट लेवल्स पे कैटेगरीज ही बोलते हैं। कैटेगरी, रैंक, लेवल, टेक्सन, ऑल ऑफ दिस आर सेम, बट टेक्सन किसको बोलते हैं? टेक्सोनोमिक हायरार्की की कैटेगरी को टेक्सन बोलते हैं। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन आउट हियर। Taxonomic categories, groups are not distinct, यहाँ पे गलती कर गया, not नहीं, are distinct biological identities but are merely morphological aggregates. wrong line है, बुक में क्या लिखा है? The taxonomic groups or categories are not merely morphological aggregates, but क्या है? Distinct biological identities. मतलब सबका अपना एक origin है, सबका अपना एक genetic material है. That is why these are biological identities out here, not merely morphological. This statement is wrong. तो आंसर मेरे पास A option is correct and B option is wrong. तो क्या आ रहा है? 1 is correct, 2 is also correct. This is not the correct answer. Incorrect. This is correct. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. अगली बार से थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। Does not mean कि ये वाले words भी ऐसे लिखे होंगे, इसको मैं second भी लिख सकती हूँ। तो you are supposed to read these options also correctly. Statement 1 is correct and statement 2 is what? Incorrect out here. Therefore the answer for that happens to be the D option. चलिए 109. X and Y are components of binomial nomenclature. हम सबको पता binomial nomenclature means giving two names to an organism. ठीक है, उसमें क्या है हमारे पास? Who proposed that? किसने दिया ये? उसको Z लिखना है। What is binomial nomenclature? कुछ भी लिखो, अभी पैंथेरा लियो लिखा, तो पैंथेरा means but the first वाला letter happens to be the generic name. Very correct. The second happens to be the specific name. Very correct. And who gave that? Callus Linnaeus. So this is a very correct option A. थोड़ा फिर भी हम लोग जल्दी से दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। X is specific epithet. No, obviously ये नहीं मेरे पास होगा। फिर मेरे पास अच्छा Whitaker. Who was Whitaker? Whitaker was the person who had given what? 5 kingdom classification. ठीक है, तो ये मेरे पास wrong आ गया, बाकी तो wrong है ही यहाँ पर। The answer for that happens to be the A option. चलिए 110, again assertion reason. Cats and dogs have some similarities. Obviously cats and dogs are having certain similarities and certain differences also. अगर मैं लिखती some differences, that also is a correct line. Cats and dogs belong to the same family. No. Cat की family का नाम क्या है? Felidae. Dog की family का नाम है Canidae. So this is a wrong statement and this is a very correct statement. Obviously wrong है तो उसका correct explanation हो ही नहीं सकता. तो A is true and B is false. That means reason is false. The answer for the question happens to be the C option. 111 now. Organisms found in extreme temperature. When I use the word extreme temperature, हमने क्या word पढ़ा बुक में? Extremophils.
Prokaryotes, there are certain prokaryotes which are what? Extremophils. But कौन सा prokaryote है? Is this cyanobacteria? No. Cyanobacteria तो अपना normal condition में रहता है, fresh water, marine water, terrestrial condition तो no. फंजाई नो, फंजाई को क्या पसंद है? वार्म कंडीशंस पसंद है, ठीक है ना, तो ये भी रॉन्ग है. यू बैक्टीरिया नो, यू बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो यू बैक्टीरिया, तो ये नहीं है. कौन है हमारे पास? आर्कीबैक्टीरियास. आर्कीबैक्टीरियास आर एक्सट्रीमोफिल. कौन कौन सा टाइप है? मिथानोजेंस, हेलोफिल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स. तो ये वाला क्या है इसका आंसर? इसका आंसर आर्कीबैक्टीरिया है और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मो एसिडोफिल्स. दैट मीन्स हाई टेम्परेचर में भी रहता है, साथ में मेरे पास लो पीएच में भी रहता है, एंड दैट इज आर्कीबैक्टीरिया. क्यों रह सकता है? बिकॉज ऑफ व्हाट? द सेल वॉल. कौन सी सेल वॉल है? सीडोम्यूरिन आउट हियर. द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन. 112. In comparison to other organisms, बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के बारे बोलना. बैक्टीरिया क्या दिखाता है? सबसे पहले when you see that, इसने डाइवर्सिटी के बारे बोला है. एक बार रिकॉल करो लाइन वहां पर. बैक्टीरिया आर सिंपल इन स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर एंड मोस्ट डाइवर्सिटी किस में दिखाता है? मेटाबॉलिज्म में. तो लेट्स गो फॉर द आंसर आउट हियर. मोस्ट एक्सटेंसिव रिप्रोडक्टिव डाइवर्सिटी किसे रिप्रोड्यूस करता है? बाइनरी फिशन से, स्पोर से, और नॉट द ट्रू वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी तो डाइवर्स एक्सटेंसिव नहीं है. सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट आउट हियर. मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब मेटाबॉलिज्म. आपको पता ना न्यूट्रिशन कितना टाइप का है? फोटोसिंथेटिक है, कीमोसिंथेटिक है, हेट्रोट्रॉफिक में पैरासाइटिक है, सेप्रोफाइटिक है, डीकम्पोजर है. तो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाता है सबसे ज्यादा. तो द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन. आगे देखो, सप्रेसिव कर दिया, उसको उल्टा कर दिया, नहीं. एंड मोस्ट एक्सटेंसिव डिवाइडिंग एक्टिविटी नो. जितना यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स है वो सबके सब डिवाइड करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना. तो आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन. नेक्स्ट स्टेटमेंट्स है 113 में. म्यूकर, राइजोपस, एल्बिगो, ये तीनों क्या है? फंजाई है. किसको बिलोंग करते हैं? आर द मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटिस. रॉन्ग. आर द मेंबर्स ऑफ व्हाट? फाइकोमाइसिटिस. फाइकोमाइसिटिस के मेंबर्स हैं. तो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग आउट हियर. द माइसिलियम इज असेप्टेड. यस, इन तीनों में माइसिलियम असेप्टेड होता है, सिनोसाइटिक. करेक्ट लाइन है, करेक्ट वर्ड्स हैं. एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द जूस्पोर्स एंड द स्पोरेंजियोस्पोर्स. यहाँ पे गड़बड़ कर गया. वो क्या है? दीस आर नॉट द सेक्सुअल स्पोर्स. ये क्या है? ये asexual spores. तो that means second line भी आधा wrong है. That means this is also a wrong statement. Both of these are incorrect. Option number B, statement 1 is नहीं, ये भी wrong है. Both of these are what? Both the statements are incorrect. Option number D. तो इनको ध्यान से पढ़ना आपने कि कौन सा correct, कौन सा incorrect. तो option number D is both the statements are incorrect. Next, 114. Which of the following protists रिलीजेस टॉक्सिन दैट में किल. पहली बार टॉक्सिन रिलीज करता है. हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में किसको मारता है? फिशेस एंड अदर मेराइन ऑर्गेनिजम्स. कौन है ऐसा जो रिलीज करता है टॉक्सिन? इज दिस यूग्लिना? नो, यूग्लिना तो रिलीज नहीं करता है. कौन करता? गोनियोलॉक्स इज द आंसर. गोनियोलॉक्स होता क्या है? डिनोफ्लैजिलेट्स. तो आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी गोनियोलॉक्स. ऑप्शन नंबर बी. What are पैरामीशियम्स? पैरामीशियम आर क्या है? पैरामीशियम मेरे पास सिलिएट्स हैं, ठीक है ना. प्लाज्मोडियम मेरे पास में क्या है? यहाँ पर प्लाज्मोडियम भी अब प्रोटोजोन्स है, बट वो डिजीज नहीं करवा रहा, मैंने सॉरी टॉक्सिन नहीं रिलीज नहीं कर रहा, डिजीज तो करवाता ही है ना, मलेरियल पैरासाइट. चलिए आगे 115. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. किसके बारे में? डायटम्स के बारे में, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. दे फ्लोट एक्टिवली इन स्टिल वाटर. अब देखो क्या लिखा था हमने बुक में, देखा पढ़ा था. प्लैंक्टन्स. व्हाट आर दीज? प्लैंक्टन्स. जब प्लैंक्टन वर्ड बोलते हैं, व्हाट डज प्लैंक्टन मीन? पैसिव फ्लोटर. पैसिव मीन स्लो फ्लोटर. तो ये जो है एक्टिवली नहीं, पैसिवली, ठीक है ना. तो ये स्टेटमेंट मेरे पास इनकरेक्ट हो गई. आंसर मेरे पास ए हो गया. स्टिल लेट्स रीड द अदर ऑप्शंस. फोटोसिंथेटिक, यस, खाना बनाता है. एम्बेडेड विद सिलिका, जो कि डिस्ट्रक्ट नहीं होती है, तो क्या बनाता है बाद में? डायटमीशियस अर्थ. तो वो भी राइट लाइन है. फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर्स, विच इज करेक्ट ऑप्शन आउट हियर. द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वायरस इज करेक्ट? वायरस का और करेक्ट है. वायरस पोजेस देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम. अगर आपको याद है हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक से वायरसेस मरते नहीं है.
अगर ये स्टेटमेंट होती, असर्शन होता, तो रीजन क्या होता उसके पास में? क्या उसके पास अपना मेटाबॉलिज्म है? नहीं है। तो उसका स्टेटमेंट में सिखाया था आपको, यहाँ लिखा दे पोजेस दे ओन मेटाबॉलिज्म, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट है, बट हमारे पास में तो करेक्ट पूछा, दिस इज रॉन्ग आउट हियर। कंटेन्स ईदर डीएनए और आरएनए, यस, नो वायरस कंटेन्स बोथ डीएनए एंड आरएनए, एक चीज प्रेजेंट है, विच इज अ वेरी करेक्ट स्टेटमेंट आउट हियर। वायरसेस आर फैकल्टेटिव पैरासाइट, मतलब आधा आधा। तो यहाँ पे क्या हमने पढ़ा था? दीस आर व्हाट? ऑब्लिगेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट है, पक्का वाला। अगर मैं इसको निकाल दूंगी होस्ट से, ये मर जाएगा। वायरसेस आर रेडली किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स। अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, वो एंटीबायोटिक से मरता नहीं है। इससे वायरल फीवर होने से एंटीबायोटिक खाने का कोई जरूरत नहीं है हमको, ठीक है ना। चलिए, द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन। हमको क्या पूछा है? करेक्ट वर्ड आउट हियर, द करेक्ट स्टेटमेंट आउट हियर। चलिए, the next 117, in fungi the various types of spores are produced in distinct structures. the spores है किसके अंदर प्रोड्यूस होता है? are they produced in capsule? कैप्सूल कहाँ पे हमने पढ़ा? कैप्सूल हमने पढ़ा फुटसीटा कैप्सूल, किसमें पढ़ा? ब्रायोफाइट्स में, ठीक है ना। ब्रायोफाइट्स में होता है जिसके अंदर हमारे पास स्पोर्स होता है, करेक्ट है। अगर वहां पे मैं वायरस लिखती, सॉरी ब्रायोफाइट लिखती इंस्टेड ऑफ फंजाई, तो आंसर सी होता। पोलन सैक स्पोर्स है मेरे पास, कौन सा? माइक्रोस्पोर, इन केस ऑफ व्हाट? एंजियोस्पर्म्स। तो ये भी रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर मैं फंजाई में जाती हूँ, द स्पोर्स आउट हियर प्रोड्यूस इन अ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फ्रूटिफिकेशन। द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन। स्पोर सैक तो सबको स्पोर सैक ही बोलते हैं, द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी ए ऑप्शन। माइंड यू, इन फंजाई, फंजाई के सिमिलर कौन है? कौन सा प्रोटिस्टा वहां पर? स्लाइमोल्ड्स, उनके पास भी फ्रूटिंग बॉडी होती है। अगर मैं यहाँ पे स्लाइमोल्ड्स लिखती तो भी मेरे पास आंसर फ्रूटिंग बॉडी या फ्रूटिफिकेशन होता, ठीक है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। इन बेसिडियोमाइसिटिस, फंजाई का थर्ड क्लास जो है बेसिडियोमाइसिटिस, द माइसिलियम इज, अगर आप देखो हमारे पास माइसिलियम ऐसा होता है। व्हाट एम आई ड्राइंग फॉर यू? ये जो लाइन बनाया है, व्हाट इज दिस? सेप्टा। और ये क्या? न्यूक्लियस आउट हियर, एंड व्हाट इज दिस? ब्रांचिंग आउट हियर। तो ये मेरे पास नॉट ओनली बेसिडियोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस, तीनों में होता है। व्हाट इज दिस? ब्रांचिंग है और सेप्टेट है। अगर मेरे पास होता अनब्रांच एंड सेप्टेट, चलो वो तो नहीं है। सिनोसाइटिक में क्या लिखती मैं? सिनोसाइटिक में फाइकोमाइसिटिस। तो दैट मीन्स फाइकोमाइसिटिस में क्या है? असेप्टेट है और सिनोसाइटिक है, दैट मेक्स इट मल्टीन्यूक्लिएटेड। बाकी बेसिडियो हो, एस्को हो, ड्यूटेरो हो, ब्रांच एंड सेप्टेट। द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट स्मॉलर दैन द वायरस। हमने पढ़ा वायरस सबसे छोटा होता है, वैसे सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा से भी छोटा कौन है? मेरे पास वायरस है, ठीक है ना। पर अगर छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म पूछा तो माइकोप्लाज्मा, तो ये चला गया। अब मेरे पास आया बैक्टीरिया। हम सबको पता है बैक्टीरियल फिल्टर से वायरस पास होता है, दैट मीन्स वायरस इज छोटा दैन द बैक्टीरिया, तो ये भी चला गया वहां पे। बचा प्रायोन्स एंड वायरॉइड्स, दोनों सब वायरल पार्टिकल हैं, तो कंफ्यूजन हो सकता है, बट हमको पता है व्हाट इज प्रायोन्स। प्रायोन्स आर ऑफ द सेम साइज, दैट मीन प्रोटीन कोट है, तो ये मेरे पास प्रोटीन कोट है, तो दिस इज नॉट स्मॉलर, दिस इज सेम साइज्ड, ठीक है ना। स्मॉलर कौन हो गया मेरे पास? वायरॉइड्स आर स्मॉलर दैन द वायरस, ठीक है। द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट 120, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देख लीजिए बहुत सारा नॉट ट्रू, नॉट करेक्ट, करेक्ट, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। वायरसेस के बारे में अगेन, दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स, वेरी गुड, दीज आर न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स, दैट मीन्स कैप्सिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लिक एसिड है, वेयर द प्रोटीन इज इन्फेक्शियस इन नेचर। यहाँ पे गड़बड़ कर गया, प्रोटीन नहीं, द न्यूक्लिक एसिड इज प्रोटेक्टिव, सॉरी न्यूक्लिक एसिड इज व्हाट? इन्फेक्शियस इन नेचर। न्यूक्लिक एसिड होता तो ये लाइन करेक्ट होती, तो हमसे पूछा है नॉट ट्रू, तो ये तो नॉट ट्रू है, करेक्ट आंसर यही होना चाहिए। फिर भी पढ़ते आगे, दे कैन बी क्रिस्टलाइज, यस वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज, ये इसका नॉन लिविंग फीचर है, मतलब लिविंग वाला फीचर नहीं है। एंड द क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन, विच इज ऑल्सो करेक्ट लाइन, स्टेनली ने बताया था ये। वायरस मीन्स वेनम, वेनम मीन्स पॉइजन, ऑब्वियस इतना कोरोना करा दिया तो ऑटोमेटिकली व्हाट इज दिस? पॉइजनस आउट हियर। वायरस कैन नेवर हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल, यस इट कैन नेवर हैव इट, इट कैन ईदर हैव डीएनए और आरएनए। तो आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 120 हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन, ठीक है।
121 द ग्रुप प्लांटी, वाइट टेकर बोलेगा मेरा क्वेश्चन नहीं पूछा, तो द ग्रुप प्लांटी आउट हियर, हमारे पास में 5 किंगडम में से फिफ्थ इज व्हाट, प्लांटी आउट हियर। क्या बताया उसने, किसको रखा, प्लांटी मींस एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म है। तो पूछा क्या क्या है उसमें, ऑब्वियसली तीनों के तीनों है। द आंसर फॉर दैट इज डी ऑप्शन। एल्गी भी लिखा होता, ब्रायोफाइट भी लिखा होता, ये सारे के सारे आर इंक्लूडेड अंडर व्हाट, द प्लांटी किंगडम। ओके, नेक्स्ट द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच, आपको पता है फ्रूटिंग बॉडी जो है उसके अंदर में, पहले ये क्या है हमारे पास, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर कैसे फ्रूटिंग बॉडी बना, फ्रूटिंग बॉडी जब मेरे पास N+N था, डाइकैरेटिक माइसिलियम, वो बनाता है क्या, फ्रूटिंग बॉडी आउट हियर। तो फ्रूटिंग बॉडी इज हैविंग दिस कंडीशन। उसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर इसके अंदर हमने फ्यूजन करवाया, व्हाट इज दिस, जाइगोट, जाइगोट बन गया। व्हाट इज जाइगोट नाउ, डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड होके क्या कराऊंगी मैं, उसको मियोसिस कराऊंगी। मियोसिस करने से क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, यहाँ पे स्पोर्स आउट हियर, मियोसिस, ठीक है ना। ये मेरे पास यहाँ पे करवा दिया, मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन होने से क्या बनेगा, ऑल ऑफ दीस आर व्हाट, हैप्लॉइड। सो दिस इज N+N, दिस इज डिप्लॉयड एंड दिस इज व्हाट, हैप्लॉइड आउट हियर। तो देखिए क्या लिख रहा है ये, in which dash division occurs, is this mitotic or reductional, obviously reductional। reduction को मैंने क्या लिखा, meiosis। तो reductional division occurs leading to the formation of dash spores, meiosis करके आया तो haploid होना पड़ेगा। the answer for that happens to be the reduction and the haploid। तो आंसर नंबर बी, आप देख लीजिए डी में भी मेरे पास रिडक्शन है, कभी भी रिडक्शन होने से डिप्लॉयड नेचर नहीं रहता है, वो हैप्लॉयड नेचर बना देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 123 of the following statement which are not relevant to archaebacteria, archaebacteria से कुछ भी लेना देना नहीं है। they live in some of the most harsh habitat, correct है, extremophile है, which is correct out here। they are present in the gut of several ruminant animals, कौन सा वाला, methanogens, which is very correct out here। मीथेन बनाते हैं, gut में present होते हैं methanogens, correct out here। next they are characterized by the presence of a rigid cell wall, cellulosic cell wall। यहाँ पे गड़बड़ कर गया, क्या होना चाहिए था यहाँ पे, स्यूडोम्यूरिन। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो क्या होना पड़ेगा, स्यूडोम्यूरिन। ठीक है, चलो they include mycoplasma, no, mycoplasma is not an archaebacteria, which is wrong answer। they are also referred to as blue green algae, no, ये भी क्या है, eubacteria है, तो ये भी wrong है। यहाँ पर हमसे पूछा not relevant to, तो कौन कौन सा मेरे पास wrong है, CDE, तो कहाँ पे CDE, that is option number C out here। ठीक है, चलिए आंसर इज C option। नेक्स्ट क्वेश्चन आउट हियर, हेट्रोट्रॉफिक, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर। हेट्रोट्रॉफिक मींस खाना नहीं बनाता, यूकैरियोटिक मींस वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, मल्टीसेलुलर मींस बहुत सारे सेल्स है। कौन कौन यूनिसेलुलर है, मेरे पास दो ही, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, तो दोनों चले गए। ऑर्गेनिज्म लैकिंग अ सेल वॉल, सेल वॉल भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या है, सेल वॉल नहीं वाला कौन है, मेरे पास में एनिमल्स है। आर इंक्लूडेड इन विच, प्रोटिस्टा के पास में हमारे पास में क्या क्या होता है, फोटोसिंथेटिक भी है और सेल वॉल में भी प्रेजेंट, तो दिस इज रॉन्ग। फंजाई के पास सेल वॉल है, सो दिस इज रॉन्ग। ये भी हो सकता था यहाँ पर, बट यहाँ पे क्या लिख दिया, लैकिंग ए सेल वॉल, नहीं तो बहुत चांसेस था फंजाई टू बी द आंसर फॉर दैट। प्लांटी हेट्रोट्रॉफिक नहीं ऑटोट्रॉफिक है, देयरफॉर एलिमिनेट करो, द आंसर फॉर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 125, which is correct. Let's talk about the correct option out here. In all slime molds, spores does not possess the true wall. A wrong statement. Book में लिखा है slime molds are naked. These are without the cell wall. But cell wall बनाता है कब? Spores के अंदर. Spores are having a true cell wall. So this is a wrong statement. तो इसको पढ़ना आराम से. So this is a wrong statement out here. Protozoans are believed to be the primitive relatives of animals. Yes, जितना यहाँ पर है, these are not having the cell wall. Holozoic nutrition भी है काफी लोग में. So what is this? This is correct option out here. Dinoflagellates are non-motile. Wrong. Dinoflagellates के बाद ऐसा दो flagella होता है, transverse and longitudinal. Grooves में, furrows में present है. So this is again a wrong statement. Pellicle is absent in Euglena. ये तो favorite question है Euglena का. Pellicle is present. What is pellicle? The proteinaceous covering for it. It's not the cell wall. So ये मेरे पास भी wrong है. The answer for the question 125 happens to be the B option. ठीक है, चलिए 126. Let's match the following.
Match the following, choose the correct combinations out here. Saprophytic protist, saprophytic protist कौन है मेरे पास? slime mold, so option number 4. golden algae कौन है? desmids, desmids chrysophytes का, तो option number 3. malarial parasite कौन है? plasmodium, option number 2. trypanosoma कौन है? sleeping sickness cause कराता है, तो option number 1. 4 3 2 1, 4 3 2 1. देखिए और कोई बैठ ही नहीं रहा, फर्स्ट ऑप्शन से ही आंसर आपके पास आ जाता है. व्हाट इज दिस? ऑप्शन नंबर सी. चलिए, Which of the following is incorrect statement regarding fungi? Incorrect है यहाँ पे fungi के लिए. Wheat rust causing agent is Puccinia. Yes, rust and smut is caused by the Basidiomacetes. Rust is caused by Puccinia. Smut is caused by Ustilago. So this is the correct answer. ठीक है ना, ये right line है. पेनिसिलियम इज अ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक. यस, पेनिसिलियम एस्कोमाइसिस का मेंबर है, जिसे फर्स्ट एंटीबायोटिक मिली थी कौन सी? पेनिसिलिन. तो दिस इज आल्सो वेरी करेक्ट स्टेटमेंट. द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ, क्या कंपोज्ड ऑफ? पेप्टाइडोग्लाइकेन, व्हिच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. किस चीज का बना है? काइटिन. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बट हमने इनकरेक्ट पूछा है, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट आंसर. द आंसर फॉर दैट इज दिस. मैंने रॉन्ग है तो आंसर यही है डी. फंजाई प्रेफर्स टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन. यस, हमने बोला था राइजोपस को अगर मेरे को ग्रो करना तो कैसे करूंगी? एक ब्रेड लूंगी, मॉइस्ट करूंगी, खुले में रख दूंगी और क्या हो जाएगा मेरे पास? ये यहाँ पे फंजाई ग्रो कर जाता है. सो दैट इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट आउट हियर. तो आंसर फॉर 127 हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. 128. A and B are organism. ठीक है, दो ऑर्गेनिजम्स हैं. बिलोंग्स टू किंगडम. P and Q किंगडम का नाम है. ओके, किंगडम देखना है. आइडेंटिफाई P and Q ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर्स. सेल टाइप है, पहले P को पढ़ लेते हैं. सेल टाइप है यूकैरियोटिक. यस, तो मेरे पास क्या निकल गया यहाँ से? मुनरा निकल गया यहाँ से. ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास सेलुलर है, यहीं पे मेरे पास आंसर आ जाता है. सेलुलर है और प्रोकैरियोटिक नहीं है, तो मुनरा नहीं है, तो क्या होगा मेरे पास? प्रोटिस्टा. तो बिना पढ़े भी मैं आगे जा सकती हूँ, बट मेरे पास 3 ऑप्शन में ये है, तो सोच के रखना है. इसको तो काट ही दूं, बट फिर भी आगे पढ़ लो. यूजुअली एब्सेंट क्या? सेल वॉल. वी हैव स्टडी सेल वॉल मे बी प्रेजेंट, मे नॉट बी प्रेजेंट. ठीक है, तो ये एब्सेंट है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक दोनों है. यस, हमारे पास दोनों है, तो जिसके लिए मेरे पास इन तीनों ऑप्शन में से आंसर हो सकता है. लेट्स रीड द क्यू वाला. यूकैरियोटिक अगेन मुनरा नहीं है. मल्टी सेलुलर अगेन प्रोटिस्टा नहीं है. सेल वॉल इज प्रेजेंट, तो मेरे पास एनिमेलिया नहीं है. तो बचा क्या मेरे पास में? मेरे पास में प्रोटिस्टा भी चला गया, बचा क्या मेरे पास? प्लांटी. एनिमेलिया तो नहीं है और फंजाई बचा. ठीक है ना, लेट्स टॉक अबाउट दैट. एंड हेटेरोट्रॉफिक, तो प्लांटी भी चला गया. क्या मेरे पास? फंजाई. द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी प्रोटिस्टा एंड फंजाई. ऑप्शन नंबर सी. ठीक है ना, आपने ध्यान से पढ़ना है, आपको आंसर मिल जाएगा. ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बी पेशेंट, आराम से पढ़ के उसको आंसर करिए. Which of following is considered to be a multicellular? See, simple questions है, but basic questions पे आप wrong करते हो, इसके लिए basic questions are been added out here. चलिए, multicellular. Fungi is multicellular, correct है. Viroid is तो acellular. Prions are acellular. This is also acellular. The answer for that happens to be the A option. देख लीजिए, वायरस acellular है, तभी हम इसको लिविंग नहीं मानते हैं. तो उससे छोटे वाले सब पार्टिकल्स क्या होंगे? acellular ही होंगे, तो मल्टीसेलुलर नहीं है. चलिए, look at this diagram. डायग्राम का क्वेश्चन, लेट्स गो फॉर इट. सिलेक्ट दिस इज फॉर द बैक्टीरिया. बुक में बना हुआ डायग्राम है. क्या दिखाई दे रहा है? बाइनरी फिशन. जब बाइनरी फिशन दिख रहा है, ये कंस्ट्रिक्शन हो रहा है हमारे पास साइटोकाइनेसिस. क्या हो चुका है यहाँ पे? देखो, न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है. न्यूक्लियोइड मतलब तो डीएनए हैज सेग्रीगेटेड आउट हियर. कैरियोकाइनेसिस हो चुका है. अभी क्या कर रहा है? साइटोकाइनेसिस. व्हाट इज दिस? इज दिस बडिंग? नो, बडिंग तो है ही नहीं. बाइनरी फिशन, यस, मैंने बता दिया बाइनरी फिशन. और क्या हो चुका है? कैरियोकाइनेसिस हो चुका है. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए, दोनों के अंदर डीएनए दिखाई दे रहा है ना, ये भी डीएनए, ये भी डीएनए, ये हो चुका है. कैरियोकाइनेसिस डन, साइटोकाइनेसिस कर रहा है. और बाइनरी फिशन कब करता है? जब फेवरेबल कंडीशंस होता है. तो ऑटोमेटिकली द आंसर फॉर दैट इज बी ऑप्शन. और आपको याद है, जब हम लोग बोलते हैं क्या बनाता है? स्पोर से कर रहा है, तो अनफेवरेबल कंडीशन. कौन सा स्पोर्स होते हैं? वो स्पोर्स राइट है. स्पोर फॉर्मेशन अनफेवरेबल लाइन राइट है, बट ये स्पोर नहीं बना रहा है. हमारी बुक में कहाँ पे स्पोर बनाया? इफ यू रिमेंबर, ये ऐसे करके डायग्राम बनाया फॉर व्हाट? बेसिलस. तो यहाँ पे हमारे पास स्पोर बना है. अगर ये वाला डायग्राम होता तो स्पोर फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशंस होता. ठीक है, द आंसर फॉर दैट इज बी ऑप्शन. चलिए, 131. स्पोर्स ऑफ द स्लाइम मोल्ड्स. अभी मैंने बताया जो स्लाइम मोल्ड है वो क्या है मेरे पास में? उसके पास में
हमारे पास प्लांटी के जैसा फीचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल इन द स्पोर स्टेज। एनिमल के जैसा फीचर क्या है? एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल इन क्या है? सोमैटिक स्टेज। फंजाई के जैसा फीचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ फ्रूटिफिकेशन। अब ये स्पोर्स या फ्रूटिफिकेशन कब बनाता है? ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे, स्पोर्स ऑफ दिस आर प्रोड्यूस्ड इन द फ्रूटिफिकेशन, पर कब बन रहा है? जब मेरे पास क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन। तो लेस रेसिस्टेंट, नो। हाईली रेसिस्टेंट, तो अनफेवरेबल कंडीशन बना हुआ है, अपने आप को बचाता है, तो हाईली रेसिस्टेंट। फिर हाईली रेसिस्टेंट तो ये भी है, ये भी है। तो क्या देखना हमने? फ्यू ईयर्स लिखा है, मेनी ईयर्स लिखा है। एनसीईआरटी बोलती है मेनी ईयर्स तक ये बच के रह सकता है। द आंसर फॉर दैट इज व्हाट? डी ऑप्शन। और ये स्पोर्स किससे डिस्पर्स होते हैं? किट से, एयर। एयर नहीं तो क्या? विंड। तो आंसर फॉर दैट इज व्हाट? द डी ऑप्शन आउट हियर। चलिए देखें एक और डायग्रामेटिक क्वेश्चन आउट हियर। Given is the representation of the life cycle of the members of Ascomycetes or Basidiomycetes। तो देखते चलो, हैप्लोफेज, हैप्लोफेज मींस हैप्लॉइड फेज। तो सपोज मेरे पास ये दो है हाइलम, हाइफी आउट हियर है, ये हाइफी है, ये भी एक हाइफी है, ठीक है ना? ऊपर भी है न्यूक्लियस, यहाँ पे भी है न्यूक्लियस, बट आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस पोर्शन आउट हियर, ठीक है? ये दोनों हैप्लॉइड फेज है। क्या किया इन्होंने? यहाँ पर आके इन्होंने ये दोनों को फ्यूजन कराया, तो क्या बन गया? ये वाला फेज। ये फेज क्या है? N+N फेज। इसने क्या किया? यहाँ पे किसको फ्यूज करा दिया? प्लास्मोगैमी। प्लास्मोगैमी किया, ठीक है ना? प्लास्मोगैमी मतलब ये न्यूक्लियस है यहाँ पर। अब ये क्या करेगा? यहाँ पर दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बना देगा? कैरियोगैमी। कैरियोगैमी बन गया तो दैट मीन्स डिप्लॉयड, मतलब क्या बन गया? जाइगोट आउट हियर। सो क्या हो गया यहाँ पे? डिप्लॉयड स्टेज। अब ये क्या करेगा? यहाँ पे मियोसिस करेगा। क्या करेगा? मियोसिस। तो क्या प्रोड्यूस कर देगा? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड आउट हियर। तो लेट्स सी टू दैट। हैप्लोफेज मतलब फर्स्ट वाला फेज। डाइकैरियन फेज, तो क्या किया इसने? प्लास्मोगैमी। क्या लिखा? प्लास्मोगैमी। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। फिर उसने ये बना दिया डाइकैरियन मींस N+N। यहाँ पे मेरे पास N+N बन गया, ठीक है? फिर उसने क्या किया? डिप्लोफेज। तो मतलब यहाँ पे क्या किया? प्लास्मोगैमी के बाद क्या किया? यहाँ पे कैरियोगैमी किया, ठीक है ना? कैरियोगैमी किया। कैरियोगैमी से दोनों फ्यूज हो गया तो डिप्लॉयड बन गया, जाइगोट बन गया। फिर वो क्या करेगा? यहाँ पे मियोसिस करके हैप्लॉइड बनाएगा, तो मियोसिस किया यहाँ पर। सो व्हाट इज दिस? प्लास्मोगैमी, फिर सेकंड इज कैरियोगैमी, देन मियोसिस। द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन, ठीक है ना? आई होप इट्स क्लियर टू यू। वैसे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनाया था? प्लास्मोगैमी, कैरियोगैमी, जाइगोटिक, मियोसिस। बट ये जो डाइकैरियन स्टेज है सिर्फ इन दोनों में आता है। दैट इज व्हाई दिस इज ट्रू ओनली फॉर व्हाट? द एस्कोमाइसेट्स एंड द बेसिडोमाइसेट्स, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ दिस स्पोर्स आर नॉट मेंट फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई? फंजाई में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लेना देना नहीं है। कोनिडिया, these are asexual spores. Zoospores, these are asexual spores. Basidiospores, these are sexual spores. तो these are not meant for asexual reproduction. तो ये तो मेरा आंसर है। Ascospores, these are sexual spores of Ascomycetes. These are sexual spores for Basidiomycetes. Oospores, sexual spores for Phycomycetes. Sporangiosspores, नहीं ये तो क्या है? Asexual spore है। तो how many of these are not meant for asexual reproduction? Basidiomycetes, Ascomycetes, sorry, Basidiospores, Ascospores and Oospores. There are three of these. The answer for the question happens to be the B option. अगर क्वेश्चन में asexual spores से रिलेटेड है आता तो भी मेरे पास क्या आंसर आता? 3, मैंने 3 होता, तो आप बच गए, दोनों साइड से 3 आंसर है, ठीक है? चलिए लेट्स टॉक अबाउट द 134th क्वेश्चन। अगेन मैच द फॉलोइंग, बट इस बार क्या साइंटिस्ट से मैच करना है। इवानोस्की क्या किया था इसने किया था सबसे पहले किसको ढूंढा था? इसने स्टडी किया था TMV का। तो दैट मीन डिजीज, मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको किसने ढूंढा था? ये है इवानोस्की, ऑप्शन नंबर 4। बाय चर्निंग कॉन्टेंजियम विवियम फ्लूइडम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इसने बताया था अगर मैं इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म से सैप लेके दो हेल्दी को डालता हूं तो वो भी इन्फेक्शियस हो जाता है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज टू बी मैच्ड विद द थर्ड ऑप्शन आउट हियर। स्टेनली जिसने फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइज किया था TMV को, सो दैट इज द सेकंड वाला। डाइनर उसने क्या बताया था? वायरॉइड्स को ढूंढा था, सो दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए 4 3 2 1 4 3 2 1, ये भी 4 है भी 4, 3 भी राइट है, बस यहाँ पे घूम गया है। तो आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द C ऑप्शन, ठीक है? चले 135 out here. Assertion that Mises earth is used in polishing. Yes,
filtration of oil and syrup, right here, this is a correct line. पहले diatomaceous earth क्या है? The silica of the diatoms, indestructible, settles at the water body का bottom में, और क्या बनाता है diatomaceous earth? Diatoms are the chief producer of ocean, which is again very correct. पर क्या उसका उससे कुछ लेना देना? No, both the statements are true, but the reason is not the correct explanation of the assertion. The answer for this happens to be the B option. I hope you have done very well in the paper. It was not a very tough paper, but it had many basic points out here, basic questions out here. As we progress, we'll make tougher and tougher papers for you so that you can easily adapt this time. जो last time आपको problem आई, वो problem face नहीं करेंगे हम लोग, तो हर तरह के question के साथ में adjust करेंगे. This being the very first paper, easier for you. So get set, go. Thank you.